Good evening, everybody. I welcome you all for such a enlightening session by Mr. Ankit Majmudar. Basically, he's going to take the lecture in whatever has happened in 23 on the field of exports and what is the way ahead or what is the way forward. Because if we really want to achieve the dream of Viksit Bharat of our Prime Minister Shri Narendra Modi, export or India has to play a bigger role in export than what status we are having. So it is going to be a very interesting lecture or very interesting deliberations. Before we go ahead, I would like to introduce Mr. Ankit Majmudar for your information. Mr. Ankit Majmudar is a founder of Global Business Solution, and he assists his client to explore global opportunities by providing international business consulting to the startups and MSME for selecting markets, finding buyers or suppliers, and executing all the export-import activities. He is currently consulting to the clients in heavy machinery, engineering products, home furnishing, and ceramics and tiles, as well as chemicals and various products for the various industries. Mr. Ankit has traveled across 20 plus countries across Europe, South America, Africa, and Southeast Asia. He has managed the international trade fair and exhibitions in several countries for various industries. Mr. Ankit has hands-on experience in managing the business through B2C and B2B models. His expertise lies in developing and managing the ecosystem for pre-shipment and post-shipment export activities. He is associated with Ahmedabad Management Association, that is AMA, MSME, and IIIM, that is International Institute of Import and Export Management, and other institutions to train the mentor entrepreneurs in international business. Mr. Ankit is also associated with MBA Institute of GTU, that is Gujarat Technological Universities, as a guest faculty and delivering sessions on the international business. He holds the Master of Commerce and Master of Business Administration, that is MBA, in marketing. Now, I'll just hand over straight to Mr. Ankit. Before that, as per our ritual of the AMA, I would like to felicitate Mr. Ankit. Thanks. Thank you. Thank you. Ajay bhai. Sir, now stage is yours. Okay, please. Thank you, sir. Ajay bhai, slide changer. Slide changer. So, good evening, friends. Today we will talk on how India perform. मोटा मोटा प्रोडक्ट्स कितना यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, सर्विस के बारे में क्या है, कौन सी कंट्रीज में गया, विच ऑल आर दी टॉप 10 कंट्रीज, विच ऑल आर दी टॉप 10 प्रोडक्ट्स, वो थोड़ा डेटा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे क्योंकि इसी पे बात करेंगे. इट वुड बी ए ब्रीफ सेशन ऑफ 1 आवर. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू टेक द वे फॉरवर्ड. ये तो है फिलहाल कंट्री का जो परफॉर्मेंस है वो. अब हमारे हिस्से में एट आवर लेवल, एट मैक्रो लेवल पे बात करेंगे और माइक्रो लेवल पे हम इसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं, वेदर इट इज अ स्टार्टअप कंपनी और वेदर इट इज एन एमएसएमई कंपनी. सो वो थोड़ा देखेंगे. एक आध यहाँ पे आपको वेब लिंक ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि आपको किसी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना है, सो व्हाट ऑल आर दी 10 प्रोडक्ट्स. तो मैं आपको दिखा दूंगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हिसाब से. इज अ फ्री वेबसाइट, गवर्नमेंट की WTO की ऑपरेटेड वेबसाइट है, उसमें देखेंगे. और देन आपको चैलेंजेस बताऊंगा कि वर्ल्ड वाइड फिलहाल कितने कितने चैलेंजेस आ रहे हैं एट मैक्रो लेवल एंड स्पेसिफिक टू इंडिया लेवल, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर दी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एज वेल. सो ओके, so let us talk about how India as a country performed in each sector. आपको मोटा मोटा एक पूरा एक products as well as sectorial picture आपको idea रह जाएगा कि how we as India as a country is doing. So first is अब देखें record breaking exports. आज तक का सबसे ज़्यादा exports हुआ है. टोटल हम बात करेंगे, इट इज $776 billion. So that includes the exports of goods
material plus services, consulting service, auditing service, account services, also service itself export आप देखने जाओगे मोटा मोटा, so it ranges in the band of 345-350 billion dollars. It's a huge way in that. So India is one of the top 10 exporters of service worldwide. So second is March. अगर हम पर मंथ देखने जाए तो आज तक का एक्सपोर्ट्स का जो इतिहास रहा है इंडिया का, उसमें मार्च 2024 इज द माइलस्टोन, क्योंकि एक महीने के अंदर 40 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट जो क्रॉस हुआ है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम. So we believe that the government of India and we as at the entrepreneur level, we at the MSME level, at the business perspective, हम लोग कुछ ना कुछ सही डिसीजन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ सही काम कर रहे हैं. That's the only way to see it in that perspective. Another is diverse growth. पहले क्या होता था कि पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे, क्रूड ऑयल हो गया आपका, डीजल क्रूड हो गया, वो सब इंपोर्ट होते थे और उसको हम फिनिश करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हिसाब से बाहर बेचते थे. सिमिलरली रॉ डायमंड्स वगैरह आते थे, यहाँ पे पॉलिश डायमंड्स लगा के उसको थोड़ा हम लोग फिनिश करके बेचते थे. सो प्राइमा फेसी एक्सपोर्ट का जो बास्केट था, दैट वाज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड योर जेम्स, ज्वेलरीज एंड डायमंड. इस बार शायद 23-24 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स का काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ है. सो इट इज़ ए न्यू ट्रेंड्स सेटिंग इन वेरियस प्रोडक्ट्स. सो गवर्नमेंट यही बताती है कि आप एक प्रोडक्ट या एक सेक्टर पे फोकस ना करके यू डाइवर्सिफाइड योर वे ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स. सो दैट इज परहैप्स वी आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन, इसलिए उसको बोलते डाइवर्सिफाई ग्रोथ. अदरवाइज वो बोलते ना, एक 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में आता था लोपसाइडेड ग्रोथ, लोपसाइडेड इकोनॉमी, वो तराजू हो या आमज रहे, these parts never grow, but then this was the first time in last 2 years that this is happening. Key drivers of course electronic goods. आप मोबाइल वगैरह के देखते होंगे तो huge exports of Apple phones वगैरह यहाँ से होते हैं. Pharma for sure it is always been a growing sector as such. And engineering goods का हमेशा दबदबा रहा है जहाँ तक exports total की बात है. So मेरे हिसाब से engineering exports percentage to the total exports of India is around 24-25%. अगर $100 इंडिया एक्सपोर्ट करता है पूरे साल में तो $24 comes from engineering products, right? And that is where we are, or mostly MSME is there. So MSME contribution to the India's GDP is around 40%. MSME sector का जो exports का जो contribution to the India's export है 45%. It's a huge way in that way. इलेक्ट्रिफाइंग सर्ज, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट बढ़ा है करीबन 23-24% से, दैट हैज गॉन टू अराउंड $30 बिलियन. किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स. द मेन रीजन इज द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जहां पे सरकार कहती है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको सरकार उनको देती है इंसेंटिव्स. वो कैसे देती है? ऑन द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन. It is not export incentive, it is production incentive. So for an example, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कारोबार किया and you have taken benefit of that scheme. So your current production is around, say for an example, value उसकी होती है 100 crore rupees, ठीक है? अगले साल आपने 150 किया, तो वो 50 crore जो एडिशनल किया उस पे सरकार आपको 6% के अराउंड वापस करती है. So it's a huge incentive in that way. So जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो इसलिए आगे बढ़ रही है. So ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड ये स्कीम नहीं है. This scheme is for sectors. So out of these many sectors, government have selected 14 sectors. उसमें this is one of it. Another is pharma industry. पारेख साहब नो उसके फार्मास्यूटिकल में भी ये लागू पड़ता है. तो कुछ सेक्टर्स पे है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि देयर आर 75 सेक्टर्स जहां पे अगर फोकस करेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा. द रीजन क्यों है? बिकॉज एवरीथिंग गोज ऑन बेसिस ऑफ साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स. ये नहीं कि यार कौन सा भी तुक्का लगा दिया और हो गया. तो सरकार ये एनालिसिस किया कि जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया से जाते हैं, करीबन 8,000, 9,000, 10,000 प्रोडक्ट्स जाते हैं, 75 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी है जहां इंडिया 50% ऑफ द वैल्यू एक्सपोर्ट करता है. मतलब अगर 10,000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है इंडिया और उसकी वैल्यू अगर 100 करोड़ है, ठीक है, तो 75 प्रोडक्ट्स लाइन ऐसी है जिसका एक्सपोर्ट इज इन द रेंज ऑफ 500 करोड़. सो 50% ऑफ इट. सो इसलिए ये सेक्टर सिलेक्ट किए और वो 75 सेक्टर्स में से 14 सेक्टर में करंटली ये PLI स्कीम लागू की है. सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन, फार्मास्यूटिकल इज वन ऑफ इट. जी सर. हाँ हाँ, करेक्ट.
इलेक्ट्रिक स्कूटी जो भी जैसे इंडिया में बन रही है करेक्ट, उसके प्लांट में ही है। ट्रू, तो उसके जो सारे रॉ मटेरियल्स इलेक्ट्रिक मोटर चाइना से आते हैं, सारे चाइना से आते आएंगे। इसलिए अभी दिखाऊंगा आगे की स्लाइड में, चाइना से इंपोर्ट इंडिया में ज्यादा हुआ है। कितना किया है? मेरे हिसाब से जहां तक मुझे फिगर रिमेंबर करता हूं, इट इज मोर देन 101 और 102 बिलियन डॉलर्स। और इंडिया ने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया है पूरे साल में? खाली 16 बिलियन डॉलर्स। इसलिए वो 75-85 बिलियन डॉलर्स की गैप आती है। इसलिए सरकार कहती है कि जो आपको मटेरियल या प्रोडक्ट जो लगता है कि इसके बिना नहीं चल सकता, सिर्फ वही इंपोर्ट करें। ये ना कि शर्ट के बटन भी चाइना से आए, जो फिलहाल हो रहा है, बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, विद फैक्ट ये है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि चाइना से इंपोर्ट जो हो रहा है वो ये प्रोडक्ट्स में हो रहा है, सो उसके हिसाब से आगे फिर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा। सो इन अ वे यू आर वेरी करेक्ट, चाइना से ही आना है। जैसे फार्मास्यूटिकल यार, एपीआई 75% ऑफ एपीआई कम्स फ्रॉम चाइना। इट इज नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि वी विल हैव एपीआई हब्स, है ना, पार्क बना वैसे भी एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो बोलते हैं कि बाहर से इंपोर्ट मत करो यार, ये यहीं पे बनाओ, और तुमको चाहिए रोजमर्रा की फार्मास्यूटिकल में चाहिए तो यहीं से लो, रादर देन गेटिंग इट फ्रॉम चाइना। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग सम मेजर्स, बट रातों रात नहीं चीजें होने वाली, काइंड ऑफ। हैं। एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, जैसे एमसीबीज है, एमसीबीज हमारे इंडिया में काफी बना रहे हैं, Correct. Hyundai, Aero, Correct. काफी बना रहे हैं। ट्रू, बट प्रॉब्लम अब ये आ रही है इंडस्ट्री को, जो आप कॉस्टिंग सेट करनी है नहीं होगी, वो चाइना से जो मैच सस्ता पड़ेगा, करेगा, क्योंकि पूरा अलग है ना। इकोनॉमी देखने जाओ आप तो चाइना इज ए इकोनॉमी विच वर्क्स ऑन मास प्रोडक्शन, नंबर वन। सो यू वोंट बी एबल टू मैच द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू वोंट बी एबल टू मैच, तो वो थोड़ा रहेगा, जो उसमें कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं, तो अभी चल रही है चीज़, राइट। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन। फार्मास्यूटिकल बूम, ये देखें, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय अराउंड 10% टू अराउंड 28 बिलियन डॉलर्स। ये बड़ी तादाद में हो रहा है, और यूएस इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो करीबन इंडिया अगर $100 कहीं पे फार्मा का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, यूएस उसमें से $30 लेता है, मोटा मोटा, सिंगल लार्जेस्ट मार्केट। इसलिए ये यूएस एफडीए ये सब चल रहा है, क्योंकि वहां पे अगर एक्सपोर्ट करना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यूएस एफडीए इज मैंडेटरी, काइंड ऑफ, ठीक है। अनदर इंजीनियरिंग गुड्स, जो मैंने बताया, करीबन $109 बिलियन से एक्सपोर्ट किया है, इट हैज इंक्रीज बाय 2%। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बूस्टअप हुआ है, मेनली इन द टोबैको, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट हो गया, डेयरी हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया, सीरियल्स हो गया आपका। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, शायद आप जो एग्रीकल्चर फील्ड से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे लोगों, उनको पता होगा कि गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड मिलेट ईयर एक्सपोर्ट्स के लिए, बढ़ावा देने के लिए, राइट। सो गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है ताकि नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स पे पीएलआई स्कीम है, तो एग्रीकल्चर पे क्या, तो एग्रीकल्चर पे भी कुछ स्कीम्स ऐसे कुछ करके दी है कि यार ये करो वो करो। अभी डिस्ट्रिक्ट पे चल रहा है, सो ओडोप कर, हम लोग ओडोप बोल रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से एक प्रोडक्ट होना चाहिए। सो अगर पाटन है तो पाटन का पटोड़ू, राइट, इन दैट वे। अगर भुज है तो भुज कच्छ का हैंडीक्राफ्ट्स, इन दैट वे, राइट। सो सूरत है तो डायमंड्स। तो ऐसे एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेके एक एक प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट तभी आप, मैं या फिर कोई मुल्क कर पाएगा जब उसका फोकस सही जगह पे है, वरना तो फिर 220 कंट्री में घूम जाओगे और 10,000 प्रोडक्ट्स में घूम जाओगे, राइट। सो इसलिए ये अपने ये प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि आपको पता चले कि बड़ी तादाद में इंडिया से कौन सी प्रोडक्ट्स जाती हैं, उनकी क्या वैल्यू है, कहाँ पे मार्केट है, और अगर वो मार्केट है तो चैलेंजेस क्या है, और चैलेंजेस है तो उससे उभरे कैसे, दैट इज द लॉजिक। ओके, सो डेफिसिट भी कम हुआ है पहले से। देखें आप, अगर डेफिसिट देखने जाए, इट हैज कम डाउन टू 240 बिलियन। सो बैलेंस बिटवीन, यू नो, जिसको बोलते हैं सरप्लस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है, जो माइनस प्लस होता है माइनस है, लेकिन 240 है, पहले बहुत था, तो इस गॉन डाउन बाय 9%। 35% इंप्रूव बाय 35%। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट 35% इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल मतलब गुड्स और सर्विस दोनों मिला के। और ये जो नीचे लिखा है मर्चेंडाइज, दैट इज ओनली गुड्स, तो मैंने दोनों पिक्चर दी हैं, गुड्स प्लस सर्विस एक, एंड अनदर इज एक्सक्लूसिव गुड्स, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं कि ज्यादातर लोग एक्सपोर्ट्स में प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं रादर देन सर्विसेज। यस, $240 बिलियन फॉर दी गुड्स, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट 100 गया, उसके सामने 140 इंपोर्ट हुआ, तो वो जो गैप है वो $240 बिलियन एग्जिस्टिंग, जो लास्ट ईयर इससे 10% ज्यादा थी, इन दैट वे, करेक्ट।
ये देखिए मैंने आपको टॉप डेस्टिनेशंस यहाँ पे दिखा दिए, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट, आपको कहीं कोई वेबसाइट देखने कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम AMA का यही फंडा है कि ये सब चीज़ आप तक इजीली प्रोवाइड करें। सो टॉप 10 कंट्रीज डेस्टिनेशंस, US ऑफ कोर्स नंबर 1, UAE फॉलोड बाय नेदरलैंड्स, चाइना एंड सिंगापुर साथ साथ में, क्योंकि चाइना और सिंगापुर इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है ये दोनों 5% का ये रखते हैं। सो $5 सिंगापुर, $5 चाइना, तो इसलिए मैं साथ में लिखा हुआ है। बांग्लादेश अगेन ए ह्यूज importing country from India. Brazil has come up in a very nicely, पहले टॉप 10 में नहीं था ये 2 साल पहले। सो नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स ऑल्सो। सरकार बोलती है कि हम लोगों का अभी तक दारोमदार था US यूरोप, बस खत्म, उससे ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे। मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिखाऊंगा, आई एम श्योर कि यहाँ से 50% लोगों ने वो शायद वो कंट्री का नाम नहीं सुना होगा। सो वो कंट्रीज भी है जो सरकार बोलती है कि इसको एक्सप्लोर करो यार। US कनाडा तो जो है वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन जहाँ पे वी डोंट एग्जिस्ट वहाँ पे कुछ करो तो ईजी रहेगा, राइट। सो न्यू कंट्रीज आर कमिंग इनटू पिक्चर, UK, सऊदी, इंडोनेशिया, जर्मनी इज इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया बेसिकली आप देखने जाओगे, सो इंडोनेशिया इज इन द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी। अब जरा थोड़ा गौर करोगे, जोग्राफिकली थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रीजन बीइंग कि चाइना इज देयर who is exporting in a huge way to all Southeast Asian countries, whether it is Malaysia, Indonesia, Philippines, Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, all those countries. Indonesia is also one of it जहाँ पे चाइना का काफ़ी बड़ा हिस्सा है एक्सपोर्ट्स का, और उसके बावजूद अगर इंडिया competing with China and now Indonesia is one of the key player for India as well. सो ये एक अचीवमेंट है। आपको साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री भागे कोई नहीं दिखेंगे, सिंगापुर है, मतलब काफ़ी इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर में मिलेंगे इसलिए शायद है। और सिंगापुर इसलिए है क्योंकि सिंगापुर से री एक्सपोर्ट होता है, दे डोंट कंज्यूम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आगे उसको फॉरवर्ड करते थे, इसलिए यहाँ पे वो दिख रहा है। बट इंडोनेशिया इज एन अचीवमेंट, राइट। टॉप 10 प्रोडक्ट्स देखने जाओगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील दैट, टेक्सटाइल्स गारमेंट में इंडिया अभी फिलहाल ठीक नहीं कर रहा है, बिकॉज बांग्लादेश अच्छा कर रहा है, श्रीलंका इज डूइंग समथिंग गुड, सो वी आर नॉट दैट गुड इन टेक्सटाइल्स, बट देन गवर्नमेंट इज डूइंग सम न्यू, लॉन्चिंग सम न्यू स्कीम्स इन टू कैटर दैट पर्टिकुलर सेक्टर। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, मेडिसिन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आयरन स्टील, व्हीकल्स इंक्लूड्स कार्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी। सो अमूल का आपने देखा होगा, अमूल का भी यहाँ पे पिक्चर बताऊंगा। नाउ अमूल इज ऑल्सो इनटू US, राइट। ये देखें, मैंने आपको कंट्री के साथ में प्रोडक्ट भी दे दी है यहाँ पे, और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा इंफॉर्मेशन। US में कौन से प्रोडक्ट जाते हैं तो जेम्स ज्वेलरी, फार्मा मशीन, खत्म। ये मतलब टॉप 3 प्रोडक्ट्स। UAE में कौन से जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, नेदरलैंड फार्मा, केमिकल्स, व्हीकल्स। वैसे ही हांगकांग में देखोगे या जर्मनी में देखोगे तो व्हीकल्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज। यहाँ पे देखोगे मलेशिया तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगेन केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। UK टेक्सटाइल्स, एपरल, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो कंट्री प्रोडक्ट सीधा हो गया आपके लिए, राइट। या जैसे आपने बोला कि जर्मन व्हीकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ट्रू, जहाँ तक मैंने, क्योंकि मैं जर्मनी लास्ट करेक्ट। तो वहाँ पे जैसे मैंने व्हीकल्स देखे, इंडियन व्हीकल्स तो वहाँ पे देखे, ओनली तो जर्मन टेक्नोलॉजी वही होंगे, यस यस। और इलेक्ट्रिक मशीनरी में बॉश होगी, स्टैंड होगी, वो भी जर्मन है, वो भी True, वहाँ पे true. उस लेवल पे जहाँ पे अभी इंडियन Correct. नहीं आ पा नहीं आता है, और टेक्सटाइल की जितनी भी मशीनरी है उसमें इंडिया से ज़्यादा जर्मन आ गए, जैसे कार वायर हो गई। है। लेकिन होता क्या है, अब मशीनरी आपको इन टोटालिटी देखना पड़ेगा। सी, मशीन का कंपोनेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है। वो तुम्हारे लिए फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है यार, उसके लिए वो असेंबलिंग का हो सकता है। सो ये लोग क्या करते हैं, फॉर देम लेबर इज वेरी कॉस्टली। तो अगर मुझे फास्टनर्स बनाने हैं तो इंडिया, चाइना के अलावा मैं किसी को बनाने दूंगा ही नहीं। अगर टायर्स मुझे बनाना है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया एंड चाइना आदि की प्लेयर्स जहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता है। तो जर्मनी क्या करता है कि मेन जो ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांसफॉर्मर बनाता है ABB, अल्स्टम, सीमेंस, अरेवा, ऑल आर जर्मन कंपनीज, ठीक है। अब ये लोग ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो इंडिया से लेते हैं या चाइना से लेते हैं। सो अगर ट्रांसफॉर्मर की कीमत अगर 100 रुपये है तो उसमें से 50 रुपये तो ये कंपोनेंट है जो हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट है, उसके लिए नहीं है। तो दिस इज, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर कोर वहां पे जाएगा, देन इट विल बी नोन एज ABB अल्स्टम ट्रांसफॉर्मर, नॉट अ लोकल मेड इंडियन ट्रांसफॉर्मर। दैट मेक सेंस, क्योंकि वो उनको नहीं परवड़ता वो बनाना, और वो इतने मास प्रोडक्शन तो है नहीं वहाँ पे। अच्छा, उनका तो और कुछ ज़्यादा इश्यूज है यूरोप में, एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली, तो वहाँ पे ना फर्नेस है, तो कास्टिंग कहाँ से बनेगा।
दिस इज हाउ यू डिराइव एंड एक डेटा है और डेटा का एनालिसिस है और एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट इन दैट वे। अभी यू आर करेक्ट, मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे लिए, उनके लिए तो असेंबलिंग कंपोनेंट्स ही है, राइट। जैसे इंसुलेटर कास्टिंग, यहाँ से बड़ी तादाद में 7215 या 7235 के HS कोड में जाता है वो कास्टिंग। अब कास्टिंग के लिए फाउंड्री चाहिए, यूरोप में तो फाउंड्री नहीं है कोई, कौन बनाएगा वहाँ पे, तो एनवायरमेंट के वहाँ तो उनके अपने ही कुछ मसले हैं। तो दोज आर ऑल कास्टिंग फॉर्जिंग के जो लगती हैं या फिर भट्टी वगैरह फर्नेस वगैरह लगती है, वो तो यहाँ पे चाइना में, वो तो थर्ड ग्रेड कंट्रीज में, उनके लिए थर्ड ग्रेड, राइट, दैट इज द रीजन। ओके, सो अनदर इज देखे फ्यू स्नैपशॉट्स आई विल ट्राई टू कवर। एक्सपोर्ट नंबर्स देखिए, रिजिलियंस हाउ इट इट इज, आप देखें कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे आप देखने जाओगे तो 265 बिलियन डेफिसिट मैंने बताया था। अब पूरे 5 ईयर्स का आप देखें, 18, 19, 19, 20, 5 ईयर्स का, सो इट हैज ऑलमोस्ट द ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप देखें 20-21 एंड 21-22 44% पोस्ट कोविड, जो इंडिया में शायद एक ही ऐसा बंदा था जो बोल रहा था कि कोविड आया है, कोविड के बाद दुनिया खत्म हो नहीं हो, वी डोंट नो और आई डोंट नो, बट बिजनेस विल फ्लरिश एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर रतन टाटा। सो हैट्स टू हिम, ही प्रेडिक्टेड दिस। बाकी सब लोग मायूस होकर बैठ रहे थे, अपने रंजिश में घूम रहे थे, ये क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे बिजनेस। इट हैज इंक्रीज बाय 44%। एंड 2023-24 में थोड़ा कम हुआ है, -3%। रीजन आई हैव मेंशन, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर पिछले 1 साल से चल रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस करने जाते हो, देयर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस, चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशंस, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस, ये सब चैलेंजेस आती है। प्रोडक्ट का जैसा जैसा किरदार, उस हिसाब से उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो व्हेन यू वांट टू एक्सपोर्ट फर्नीचर, वो कॉम्प्लिकेशंस कम है। When you want to export food products, pharmaceutical products, तुम्हारा fresh foods and vegetables, the complications increases. जो कंज्यूम वाली होने वाली चीज़ है, toys, you cannot export without 10 different types of certificates in US nowadays. क्योंकि प्लास्टिक का खिलौना बच्चा खाता है, यहाँ पे चलता है, वहाँ पे नहीं चलता, तो they have their own kind of। अच्छा, उसके बावजूद ये सब आप देखें यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। रेड सी, पनामा कैनल क्राइसिस, रिसेशनरी ट्रेंड्स पूरे यूरोप में, यूरोप इज गोइंग थ्रू रिसेशन, इसके बावजूद हम लोगों ने काफ़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। सुएज कैनल, योर रेड सी क्राइसिस, वी ऑल नो। पनामा कैनल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, पनामा कैनल जो जोड़ती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को, और उसके छोर पे फ्रेश वाटर का तालाब है। अभी प्रॉब्लम है कि वो तालाब सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट कहाँ से आई है? पैसिफिक ओशन से। क्यों आई है? क्योंकि अमेज़न के जंगल है, जो अमेज़न का जो फॉरेस्ट है, वहां से बारिश, वहां से बादल होके गुजरते जाते थे, पनामा कैनल पे वो होते होके वहां पे बारिश गिरती थी। अब क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश नहीं हुई है, बादल नहीं बने, उसकी वजह से यहां पे ड्रॉट आया है। हाउ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पनामा कैनल एंड योर अमेज़न फॉरेस्ट? प्रिसाइजली 2500 माइल्स। हम लोग सोचते हैं ना कि मैं सिगरेट पीने से बर्फ क्यों पिघलेगा, यह पिघलता है। सो एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी प्लांट, एवरी इकोसिस्टम, हर एक चीज संसार में जुड़ी हुई है, यू नो। तो ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली अपने अपने चलता है। तो ये एल नीनो पैसिफिक में हो रहा है, उसका इफेक्ट फॉरेस्ट में हो रहा है, और फॉरेस्ट का इफेक्ट पनामा कैनल में हो रहा है। पनामा कैनल का जो बिजनेस बंद हुआ है या कम हुआ है, उसकी इंपैक्ट ये है कि पूरे जहां में पनामा कैनल से 5% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड पास थ्रू। अब ये छोटी चीज है, 5% में अपने को क्या, बट इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट। अच्छा, यूएस में कितना होता है? 25% ट्रेड अफेक्ट बाय पनामा कैनल। सो ये आइसोलेशन में कुछ चीजें देखेंगे तो नहीं समझ आएंगी, बट इन टोटलिटी समझोगे तो इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट। ओके, ये देखिए सर्विस का भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सर्विस इज अराउंड $340 बिलियन, 11% से बढ़ा है। अब वर्ल्ड का नजारा देखो, वर्ल्ड का जो सर्विस सेक्टर या एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, दैट इज 9%। सो इंडिया हैज एक्चुअली सरपास द वर्ल्ड परसेंटेज या वर्ल्ड ग्रोथ इन दैट वे, सो एक्सीडेड बाय 2%। चाइना सर्विस एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय 10%, फिर भी वो $381 बिलियन पे। चाइना इज नंबर 1, नंबर 2 इन सर्विस, पर उसका भी कम हुआ है इस साल। थोड़े और स्नैपशॉट्स G7 का देख लो, ब्रिक्स नेशन, इंडिया फोरकास्टेड यहाँ पे ग्रोथ आपको हाईएस्ट दिख रहा होगा। वेदर इट इज G7 कंट्रीज, वेदर इट इज ब्रिक्स कंट्री, इंडिया शाइन्स इन अमंग ऑल दिस नेशंस एट अराउंड 6.8%। और अभी पता चला है कि WTO ने उसको रिवाइज करके 7.2% तक लेके आया है।
अपने 6% भी पकड़ के चले देन ऑल्सो वी आर एट द हायर साइड. ओवरऑल एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस मार्जिनली इंक्रीज हुआ है. आपने टोटल माइन्यूटली फिगर बारीकी से दिया है. 776.68 बिलियन हुआ है, जो लास्ट ईयर 776.40 बिलियन, सो इट इज बाय 0.28 बिलियन बढ़ा है. लेकिन वो भी तारीफ काबिल है इस सब की चीज़ों के बावजूद, राइट? क्योंकि यूरोप का बिजनेस हैज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ रेड सी. यूएस यूरोप में क्राइसिस है, यूक्रेन रशिया में कुछ चल रहा है. इस सब टर्बुलेंस के अलावा उसके बावजूद हम लोग कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग समथिंग गुड. एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो ग्रीव हुए, मैंने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है, दैट इंक्लूड्स ड्रग्स, केमिकल्स, आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, आयरन ओर स्पेसिफिकली, कॉटन यार्न, मेडअप्स, फैब्स मतलब फैब्रिक्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स सेरामिक एंड ग्लासवेयर. थोड़े और स्नैपशॉट्स यहाँ पे देखिए, आपको यूएस और यूएस का लास्ट 5 इयर्स का मैंने डेटा दिया हुआ है. एंड दिस आर ऑल डेटा फ्रॉम WTO, सो दिस आर दी फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप 21, 22, 24 साल में कंपेयर करोगे तो EU में 55 से 98 हुआ है, लास्ट ईयर से भी बढ़ा है. और यूएस का देखोगे तो मार्जिनली कम हुआ है बिकॉज ऑफ द रेड सी. वो करीब 6 महीने से तो वो सब चल रहा है, तो दैट इज, एंड थोड़ा बहुत रिसेशन बीच में आने वाला था यूएस में, अब बच गया है, वो चल रहा है उसका भी. अगेन है इलेक्शन ईयर, तो वहां पे भी थोड़ा टर्बुलेंस रहेंगे. ओके, इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है. विच आर दी मार्केट्स? नेदरलैंड, ब्राजील, अफ्रीका. ये फार्मास्यूटिकल के स्पेसिफिक मार्केट है, वो मैंने जनरलाइज मार्केट बताए थे, ये स्पेसिफिक टू फार्मास्यूटिकल. न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर्ड: मॉन्टीनेग्रो, साउथ सुडान, चाड, कोमोरोस, ब्रुनेई, लाटविया, आपका नॉर्थ ईस्ट यूरोप, आयरलैंड, चाड इन योर ईस्टर्न अफ्रीका, स्वीडन, हाइटी एंड इथियोपिया. कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि फार्मा यार इथियोपिया में कहां पे जाएगा, ये कोमोरोस करके क्या है, कौन सी जगह पे, कहां पे, ढूंढो पहले मैप में कहां है, राइट? सो दीस आर द फ्यू मार्केट्स व्हिच इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग. पहले क्या था, इंडिया एक्सपोर्ट, यूएस यूरोप खत्म, तो अब ये थोड़े चेंजेस आ रहे हैं. इंडिया फार्मा इंडस्ट्री रैंक्स 3rd इन ग्लोबली बाय वॉल्यूम एंड 13 बाय वैल्यू, सो वी आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब हुई है. ये देखें थोड़े और डेटा. इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना, मैंने बोला था आपको 15 बिलियन, इंपोर्ट्स बताया था मैंने 101 बिलियन, ठीक है? इसलिए, और आपका रीजन ऑलरेडी मेंशन, टेकन केयर ऑफ. राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ मटेरियल फॉर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि चाइना से इंपोर्ट ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया. ये MG हो गई, आपका बाकी के मोबाइल फोन हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, दे डोंट एसेंशियली बाय रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, दे गेट इट फ्रॉम चाइना, क्योंकि उनको उनकी इकोनॉमी चलानी है. एवरी कंट्री हैज देयर ओन फंडा ऑफ डूइंग बिजनेस. तो इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना क्या होता है कि हम लोग जो 16-17 बिलियन डॉलर्स का जो चाइना में एक्सपोर्ट किया ना, हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल भेजते हैं, आयरन ओर भेजते हैं फॉर एग्जांपल, स्पाइसेस भेजते हैं, और वॉल्यूम बहुत लगेगा. एक जीरा का 10 कंटेनर चाइना में जा रहा है, भाई उसकी वैल्यू कुछ नहीं है. टर्मरिक का 5 कंटेनर चाइना में गया, टर्मरिक इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, लेकिन फायदा क्या, वैल्यू तो है नहीं. इसलिए सरकार बोल रही है चिल्ला चिल्ला के आप टर्मरिक के डेरिवेटिव्स बनाना शुरू करो, टर्मरिक की पेस्ट बनाओ, टर्मरिक का लोशन बनाओ, कुछ कॉस्मेटिक्स बनाओ. तो जब वैल्यू एडिशन करोगे तो वो 300 रुपए वाला टर्मरिक जो पर किलो बिकता है वो फिर 3000 पर किलो बिकना शुरू हो जाएगा. द गेम लाइज हियर, एंड दिस इज परहैप्स चाइना अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वे बैक कि यार जब तक हम लोग पिरामिड के बॉटम ऑफ प्रोडक्ट्स में घूमते रहेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है. वो पिरामिड के ऊपर आएंगे, कम बनाओ वॉल्यूम and then value added products, so then it makes a sense. This is why it is Amul as shared, ये देखें, the rest of India in US, Michigan Milk Producers Association है, वहाँ पे ये लोग फ्रेश गोल्ड बिकेगा, ताज़ा बिकेगा, शक्ति बिकेगा. अमूल काफ़ी सालों से US में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है. It is for the first time they have entered into the fresh milk business, जो बड़ी बात है, क्योंकि US is also one of the largest milk producers after India. India is number 1 in many of the dairy products as such. कट एंड डायमंड पॉलिश का आप देखें तो इट हैज डिक्लाइन. क्यों डिक्लाइन हुआ है? क्योंकि डिमांड इन यूएस, इन चाइना एंड इन यूएई हैज गॉन डाउन, जो हमारे की मार्केट्स है, क्योंकि वहां पे रिसेशनरी प्रेशर है. चाइना इज आल्सो गोइंग थ्रू रिसेशन काइंड ऑफ, रियल एस्टेट की वजह से वहां बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल्स, अनएम्प्लॉयमेंट सब है, तो दे हैव देयर ओन इश्यूज. तो उसकी वजह से ये सब चीजें कौन खरीदेगा? हाई एंड प्रोडक्ट्स है ये, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, और इसलिए हमने इंपोर्ट्स भी रॉ डायमंड्स का कम किया है पहले से. फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी स्पोकन, सो वोंट, मैंने यहाँ पे लिखा है यूएस अलोन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ इंडियाज टोटल फार्मा प्रोडक्ट्स.
सर्विस इंडस्ट्री, जो जो सर्विस इंडस्ट्री से यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, ये उनके लिए है कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर्विस गया है 49%। सो अगर $100 की मैंने सर्विस इंडिया ने एक्सपोर्ट की है तो उसमें से 49-50% इज सॉफ्टवेयर, दैट इंक्लूड्स एनीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू ITS जो अपने लोग बोलते हैं वो। अनदर इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस सर्विस, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, उसके ऊपर ट्रैवल, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड अदर्स। पहले इंडिया इंश्योरेंस में कहीं पे पूरे जहां में था ही नहीं। सो छोटी छोटी चीज लग रही है, ये इंश्योरेंस का ग्रीन कितना छोटा है यार, 1% है, पहले वो 0 था। तो हम लोग अभी वो नए प्रोडक्ट्स लाइन में, नए मार्केट्स में इंडिया इज नाउ एंटरिंग। यार इंश्योरेंस तो US, कनाडा, यूरोप जो टॉप कंट्रीज में उसके बड़े पैमाने पे वो बिजनेस हो रहा है इंश्योरेंस का। तो व्हाई वी आर नॉट डूइंग समथिंग इन दैट एरिया? सो इट इज नाउ, इट हैज यू नो कि अलार्मिंग है कि एक इसमें कुछ करते हैं अपने। दिस इज हाउ इट लुक्स। की चैलेंजेस लिस्ट डाउन किए, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। हम लोग मोर और लेस एक्सटर्नल पे बात करेंगे। सो वन इज हाई इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन in Red Sea. We don't know what is going to happen between Israel and Iran. So वो सब थोड़ा पेचीदगी वाली चीज़ है। Another is रशिया यूक्रेन वॉर, तो पता नहीं उसका भी कब होने वाला है। अब देखिए इसराइल हमास का जो रेड सी क्राइसिस हुआ है, अपने यहाँ पे जोज हुआ नॉट इनटू द एक्सपोर्ट एरियाज, उनके लिए नया है। वो बोलेगे यार इसको अपने को क्या उससे लेना देना रेड सी से। बट देन इम्पैक्ट आप उसका देखें, मैंने यहाँ पे उसको डिजिट्स में रखा है कि जब भी आपका ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, शिपिंग कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 40 to 60%। सो पहले जो $500 में चीज, $500 में 40 फीट कंटेनर जाता था, अब वही 40 फीट कंटेनर विद द सेम गुड्स गोज एट अराउंड $1,100। खटक करके उसका CI प्राइस शूट हो गया है। अब क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है, इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस कॉस्ट हैज आल्सो गॉन बाय 15-20%। नंबर 3, द नंबर ऑफ डेज हैज इंक्रीज। नंबर ऑफ डेज 15-20 दिन होते हैं, उससे क्या इंपैक्ट आता है, क्या फर्क पड़ता है? 10 दिन के बाद पहुंचेगा, उसको क्या लेना देना? एनी इंपैक्ट? इंपोर्टर्स तो ठीक है, उसको लेट मटेरियल मिलेगा, तुम्हारा एनीवन? The faster it can cover more number of trips, goods will enter into Okay. the market. Okay, close. For selling. Okay, close. Hard hitting? Goods expiry and reorder. No. Hard hitting? क्या फर्क पड़ेगा? 15 से 20 दिन ज्यादा होगा तो आपने को क्या लेना देना? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, साइकिल किसने बताया ना? योर पेमेंट साइकिल गेट्स इम्पैक्टेड, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तुमने अगर एट साइट LC मांगा है या फिर कुछ भी कोई भी पेमेंट हम तुम्हारा गया अब अगेंस्ट BL, हर 20 दिन के बाद तुम्हारा डिले हो जाएगा। सो योर पेमेंट साइकिल इज गेटिंग डिस्टर्ब। ये इम्पैक्ट है। ये लगता है कि छोटी छोटी है, लेकिन जब व्हेन यू आर इनटू कमर्शियल एरियाज तो उसका इम्पैक्ट इज वेरी ह्यूज। वो अलग सेशन है, 3 घंटे का सेशन है। पेमेंट टर्म्स 5 टाइप्स ऑफ, इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल 11 टाइप्स। वो कई लोग यहाँ पे मेरे अटेंड किए हुए सेशन, आई कैन सी दी सिमिलर फेसेस। वो 3 घंटे का सेशन अटेंड कर लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, इनको टर्म्स FOB से, XWorks से, CIF, DDP 11 टाइप्स। तो हर एक की अलग अलग वो है कंपोनेंट्स है, और हर एक का अलग अलग एक्टिविटी, हर एक की अलग अलग कॉस्ट है। कौन बेयर करेगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, वो इनको टर्म्स तय करेगी। द डेफिनेशन इज गिवन बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC, उन्होंने ये दिया हुआ है। सिमिलरली LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, किसने दिया है? ICC ने। तो हम लोग ये पेमेंट्स और इनको टर्म्स का सेशन रखते हैं यहाँ पे 3 घंटे का। लॉट ऑफ फैकल्टीज एंड लॉट ऑफ सेशंस AMA में होते ही ये सब। सो आप आ जाओ कभी भी, 3 घंटे का प्रोग्राम, उसमें इट विल बी कवर। हम लोग मटेरियल भी शेयर करेंगे और आपका प्राइस कैलकुलेशन भी करके दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने बोला CIF, सो आपको फंडामेंटली कंसेप्ट पता है CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेंड, मेरे को इतना पता है। लेकिन मुझे कोई दुबई में किसी ने बोला, अब्दुल भाई ने, कि अंकित भाई मेरे को जेबल अली CIF चाहिए, तो हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअल कैलकुलेट प्राइसेस? एक्सेल पे कैसे डालोगे उसको? वो गेम तो वो है ना, तो वो भी सिखाता है सेशन में। हाँ, FOB में मिला होगा। मुझे FOB से CIF दोनों का दिया है। Very good. जैसे यूनिट कॉस्ट थी उसकी $2.9, ओके, मैंने 100 का डाला, तो मुझे $290 की बिल। करेक्ट। उसके ऊपर FOB आया $800 का और CIF आया $900। ओके, हाँ तो CI बढ़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस एंड फ्रेट बढ़ गया ना। ट्रू। कैलकुलेट कैसे हुआ? हाँ वो सिखाते हैं, वो सेशन में सिखाते हैं। 1 hour इज टू शॉर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज हैं, थोड़ी सी पेचीदगी है, वो समझना पड़ेगा। देन यू बी, बट वंस यू अटेंड दैट प्रोग्राम, आपका जिंदगी में प्राइस के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर पाओगे। एक्सेल शीट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और उससे अलग कुछ है नहीं। ओके,
2 years पहले क्या था, फार्मा इंडस्ट्री में सिरप का कुछ चला था, आपको वी नो डेट केस एंड लॉट ऑफ चिल्ड्रन डाइड आउट ऑफ डेट। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये थोड़ी पेचीदगी रहती है, और इसलिए WTO इज ऑल्सो हैविंग देयर एक पैनी नजर रखते हैं, ये क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है करके। सो दैट इज अगेन अ चैलेंज। अनदर चैलेंज, इंडियन स्पाइसेस, MDH मसाला एवरेस्ट का भी चल रहा है, जो आप लोग पेपर में पढ़ते हो, वेबसाइट में पढ़ते हो, दैट इज ह्यूज इशू। कार्सिनोजेनिक मटेरियल मिला है, अभी इंडिया में चलता है भाई, आप अपने तो रोज वो मसाला खा जाते हैं, अपने को टेंशन नहीं है, लेकिन उन लोगों को दे आर वेरी सेंसिटिव, वो तो एडमिट करना पड़े उनको हॉस्पिटल में, वी आर यूज्ड टू इट। सो वो अभी वो मतलब मालदीव्स में है, US में, ऑस्ट्रेलिया में, सब अभी तो बखड़ा खड़ा किया कि ये व्हाट इज दे व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो स्पाइसेस का बड़ी तादाद में बड़ी कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी उसको थोड़ा ये तकलीफ है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कट एंड पॉलिश डायमंड, आप बोलेगे इसमें क्या हो सकता है, डायमंड का तो अपना अच्छा काम चल रहा है, हम लोग रफ डायमंड्स मंगा रहे हैं, हम लोग पॉलिश करके बेच रहे हैं, इंडिया इज वन ऑफ परहैप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी। लेकिन पहले ये था कि जो छोटे छोटे पत्थर आते थे, स्टोन्स आते थे, या डायमंड्स के जो आते थे, वी यूज टू गेट इट फ्रॉम एनी कंट्रीज, और उसके लिए जब हम उसको पॉलिश करके वो कंट्रीज में बेचते थे तो कोई पाबंदी नहीं होती थी। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो UAE है, जो भी इंपोर्टर्स हैं बड़े, यूरोपियन यूनियन, वो बोलते हैं कि आपने इसको प्रूफ करना है कि दिस रफ डायमंड्स आर नॉट फ्रॉम रशिया। अब हमने बोले ये नहीं है, हमने इधर ही लोकली परचेस किया है। बोले तो प्रूफ कैसे करोगे? बोल हमने बोला कि गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम अपनी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट करा के देते हैं। तो सामने वाली कंट्रीज बोलती है भाई तुम्हारे लेबोरेटरीज पे हमें एतबार नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट यू, सो यू सेंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोस रफ डायमंड्स टू ब्रुसेल्स, बेल्जियम, वहां पे वो चेक करेंगे कि हाँ ये रशियन मेड नहीं है, फिर वो कंटेनर वापस आएगा, फिर आप उसको पॉलिश करके वापस ब्रुसेल्स जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स देख लो, और एडमिनिस्ट्रेटिव हैजर्ड्स देख लो, तो वो तो क्या पेमेंट साइकिल तो भूल ही जाओ ये सब में। सो दिस इज हाउ छोटी सी चीज हम लोग कभी कभी सुर्खियों में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि इसको क्या, आपने को क्या लेना, छोड़ो और फेंको। ये जो ये बिजनेस से में है या फिर वो कारोबार से ताल्लुकात रखता है, उनको इट इज ए ह्यूज सेटबैक इन दैट वे। सो है अभी वो मसले चल रहे हैं, क्या करें। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये देखो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली आ गया, ग्रीन प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स, ये यूरोपियन यूनियंस आर वेरी क्रेजी, वेरी फसी इन दैट वे। तो वो बोलते हैं कि हमको ये सब कार्बन वाला नहीं चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो कैसे करोगे? तो इन्होंने कुछ सेगमेंट्स डिसाइड किए हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स। ये बोलते हैं कि करीबन 2026 जनवरी ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू इम्पोज 25% ड्यूटीज, 20 to 35% ड्यूटीज ऑन ऑल सेक्टर्स, वो सेक्टर्स में जितने भी प्रोडक्ट है, स्टील जितने भी डेरिवेटिव्स, एल्यूमिनियम जितने भी डेरिवेटिव्स, सीमेंट जितने भी डेरिवेटिव्स, फर्टिलाइजर कितने भी टाइप के फर्टिलाइजर, जो भी इंडिया से आएगा सब 20 से 25-35% हम लोग रखेंगे, और हम आपको 26 में रखेंगे, लेकिन अभी से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अनदर चैलेंज। अब जो लोग ये सेक्टर से रखते हैं, दाना बाना जिनका है, वो क्या करेंगे? तो ह्यूज चैलेंज, सो हाउ टू ओवरकम दिस। ठीक है 2 साल बाकी है अभी, फिर भी इट कैन बी। अच्छा, मेन चैलेंज ये है कि इंडिया फिलहाल इन सेक्टर का जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो करीबन $7.5 बिलियन का कर रहा है। अब आप समझें, मैं उसको इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, मैं 2026 में ये $7.4 बिलियन पे अगर 35% इंपोज करता हूं, सो माय प्राइसेस इज गोइंग टू जैक अप, माय कॉम्पिटिटिवनेस विज़ अदर कंट्रीज इज गोइंग टू हिट मी बैक। सो मेरा एक्सपोर्ट 7.4 अभी जो चल रहा है, 2026 में ये मुश्किल से 4 या 5 दिखेगा। यूरोपियन ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनके डेफिनेशन में, क्योंकि हम तो हमारा GDP तो अभी UK से भी ज्यादा है, लेकिन उनके लिए तो हम फिर भी वही है पीछे, એટલે એના પ્રમુખ છે। हाँ, चाइना में भी आओ सर, दे वॉन्ट टू डीमोरलाइज इंपोर्ट्स। पहले क्या था, आप समझे इसकी एक कंसेप्ट को समझे कि एक जमाना था, एक था कि ग्लोबलाइजेशन करके पूरी दुनिया में चल रहा था। वो एक मंजर था, हर कोई कंट्रीज ग्लोबलाइज करो, अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, इंपोर्ट्स आने दो, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो। अभी वो आलम खत्म हो गया है। सो नाउ वी आर मूविंग एक्चुअली फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू लोकलाइजेशन। हर एक कंट्री में आप जाओगे, जैसे मेक इन इंडिया है, US में क्या है, बाय अमेरिकन बी अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप,
कितनी परसेंट ड्यूटीज डाली थी चाइना के फर्नीचर पे? 225%। कितनी ड्यूटीज डाली थी चाइना के टाइल सैनिटरी वेयर पर? 225%। चाइना पे डाली थी, इंडिया पे भी डाली। इंडिया के कॉट स्टोन्स पे कितनी डाली हुई है अभी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी? 161%। वो हमको लगता है हमारा यार दोस्त है, कोई यार दोस्त नहीं है, सब पॉलिटिक्स ट्रेड है इन दैट वे। सो वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है। सो दिस इज हाउ ये चैलेंज, तो मैंने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज तो गिना ही नहीं है, बट देर आर एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन काफी प्रोडक्ट्स इन सब कंट्रीज में। सो दे वांट टू डीमोरलाइज इंपोर्ट्स। इनका एक ही फंडा है कि ये इंडिया चाइना से इंपोर्ट आना नहीं चाहिए, हमारे लोग यहाँ पे बनाएंगे और इनकी इकोनॉमी आगे हमसे नहीं निकलनी चाहिए। बॉटम लाइन वही है जी। जैसे मैं एक बार फूल बनाने गया था तो पास में शेल का पेट्रोल पंप, तो अब जैसे मैंने शेल में जब भरवाया, करेक्ट। चलिए एस्टर में भरवाओ, आपका एटलीस्ट 20 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है। ट्रू। तो वो कहते हैं कि ये टैक्स लगा हुआ है हमारा। हाँ, इंपोर्ट पे टैक्स होगा, हमने लगाया होगा यहाँ पे, हम भी इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाते हैं। ये हमारे इंपोर्ट ड्यूटी इज वेरी हाई। चाइना फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है 70% ड्यूटीज। केमिकल्स, जिंक बेस्ड, सल्फर बेस्ड केमिकल्स पे फिलहाल एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन ऑल चाइनीज केमिकल्स आर एसेंशियली 25%। सो ये नहीं कि वो लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सो वी आर करेक्ट इन अवर वे, दे आर आल्सो करेक्ट इन। यहाँ पे कोई गलत सही नहीं है, ट्रेड ऐसे ही घूमता है। हाँ, लेकिन जिस इकोनॉमी, जिस मुल्क की स्ट्रांग है पावर, उसका चलेगा। As simple as it is. It is nothing to do with what is happening in India. It is the economy which speaks. It is your GDP, it is your per capita income, it is your consumption pattern that matters at the end of the day. जिसका ये ज़्यादा, उसका दबदबा रहेगा मुल्क में या दुनिया में। If India becomes the third largest economy in coming year, Correct. what is going to happen? What changes you foresee? ज़्यादातर चेंजेस आपको मिलेंगे कंजम्पशन पैटर्न में, जो अभी देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों में आ रहे हैं करके। एक्सपोर्ट्स तो बढ़ना ही है, $1 ट्रिलियन बोल रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक दिस इकोनॉमी एज 5 ट्रिलियन। अगर 5 ट्रिलियन का सपना ख्वाब देख रहे हैं तो 1 ट्रिलियन हैज़ टू कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, नो अदर वे। तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी इन दैट वे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर श्योर होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि पोर्ट्स के सेक्शन में काफ़ी आ रहा है, अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कुछ चल रहा है। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स उस हैवी इंजीनियरिंग से ताल्लुकात रखते हैं, सो आई नो ए लॉट ऑफ सेक्टर्स। रेलवे में कितना आ रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन ए वे, ह्यूज वे। सो इन दैट वे वी विल हैव आवर ओन पावर, नंबर 1। नंबर 2 कि वी विल बी साइनिंग लॉट ऑफ FTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी ऑफ द कंट्रीज। सो वहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वहाँ पे हमारा वीटो पावर बढ़ेगा। ये इंडिया भी कुछ कर रहा है करके। सो हमारी आज तक में आज़ादी के बाद इतने सालों में 76 ईयर्स में इंडिया हैज साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ओनली 13 कंट्रीज। तभी तो ये आलम है। अगर सोचो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर 50 कंट्रीज के साथ होती तो चाइना जैसा हालत होता। वो भी है, वो स्लाइड में है, बता रहा हूँ। ओके, सो दिस वन कट पॉलिश डायमंड CBM मैंने बात किया 25%, 26% बढ़ेगा। द वे फॉरवर्ड, सो इंडिया ट्रेड्स अराउंड विद 235 कंट्रीज एसेंशियली। आप देखें मर्चेंडाइज ट्रेड जो 32 कंट्री के साथ है ना, वो 10 बिलियन से ज्यादा है। मतलब 32 कंट्री ही ज्यादातर फोकस में रहती है। कौन सा भी प्रोडक्ट उठा लो, 3 कंट्री 2 कंट्री बोलूंगा, US UAE आंखें बंद करके वही होंगी मार्केट। यूरोप की 1-2 कंट्री पकड़ लो। सो मोर और लेस ये एक ट्रेंड रहा है। सो $10 बिलियन इंटू 32 कंट्रीज करो, कितना होगा? $320 बिलियन। 32 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनिमम पकड़ता हूं, 320 हो गया। बाकी कितना है? 1 बिलियन इंटू 82 कंट्रीज। सो 82 हो गया, 320 प्लस 82 400 आयु एप्रोक्स। અને આપણું કેટલું છે ટોટલ? $437 बिलियन। બાકીનું 37 મિસેલેનિયસ। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दी डेटा, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट कि ये मेरे काम का इसमें से क्या है। ओके, सो देखिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आपने देखे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्री में हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हम लोग उसको इग्नोर करते थे, जो ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पेरू, इक्वेडोर, आपका पैराग्वा, उरुग्वे वगैरह, वो सब कंट्रीज में हमारा ज़्यादा फोकस नहीं था। हम तो क्या एक्सपोर्ट करना है, US करना है, कहाँ करना है, कनाडा करना है, और ये सब कंट्रीज उभर के आ रहे हैं। सिमिलरली सेंट्रल एशियन कंट्रीज, आपका ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह का CIS कंट्रीज वगैरह, सो वहाँ पे भी अभी चीज़ें बढ़ रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने यहाँ पे डेटा भी लिखा है, सो 51 बिलियन, 17 बिलियन, 3 बिलियन करके। इंडिया has signed Mauritius, UAE, Australia और IFTA. So IFTA is nothing but with 4 countries, Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. So ये 4 कंट्री के साथ इंडिया ने करार किया है। और अगले महीने इलेक्शन खत्म होते ही जून जुलाई में वी विल बी साइनिंग एग्रीमेंट विद ओमान। ओमान इज ऑलमोस्ट डन। सो
जीसीसी के 6 कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, कोऑपरेशन कंट्रीज में यूएई, सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ठीक है। 6 में से यूएई के साथ ऑलरेडी किया हुआ है मई 2022 में, अब ओमान में हो जाएगा ये 24 में, बाकी की 4 कंट्रीज में 25 या 26 तक खत्म हो जाएगा। सो एसेंशियली द इंपोर्ट ड्यूटीज विल, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है वहां पे, सो इट विल बी 0% ड्यूटीज। इसका कोई इंपैक्ट है, एक हाल ये सरकार चिल्लम चिल्ली कर दी है, इसका इंपैक्ट दिखता हूं विथ डेटा। ये देखें, ऑस्ट्रेलिया में 22-23 में नवंबर में एग्रीमेंट हुआ और आप उसका $1 मिलियन में कितना बिजनेस किया है, $6951 मिलियन, मोटा मोटा $6.9 बिलियन, ठीक है। अभी जब एग्रीमेंट हुआ तो नीचे मैंने मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब करार हुआ 22 में, सो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से अगर 100 प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, उसमें से 96% प्रोडक्ट अब ऐसे हैं जहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज इज 0। सो योर कॉम्पिटिटिवनेस हैज इंक्रीज बिकॉज योर pricing has come down. So once you lower down your price, other things being equal, your demand will increase. 11th standard economics. Principle तो ये जैसा। ये देखें, ये फरवरी तक का है, 7471 इज गवर्नमेंट डेटा जो फरवरी तक का, एक महीना का मैं ऐड करूंगा, एस्टिमेटेड $8 बिलियन। सिमिलरली यूएई के साथ एग्रीमेंट हुआ, दुबई के साथ, यूएई मतलब कि मई 2022 में आप डेटा देखें 31 बिलियन से 31.6 हुआ और एस्टिमेटेड 34, सो $3 बिलियन बढ़ा। तो हम लोग, ये सरकार कहती है कि एफटीए करेंगे, आपको लगता है ये पता नहीं क्या ही कुछ स्टेटमेंट मारते रहते हैं, इसका इफेक्ट ये। सो 13 कंट्रीज अगले साल के अंदर, ओमान, यूके प्लस बाकी के 4 कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, 6 हो गई। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ 2026 में एग्रीमेंट हो जाती है, यूरोपियन यूनियन इज ए क्लस्टर ऑफ 27 कंट्रीज, सो 27 + 6 33 कंट्रीज। जब 13 कंट्री के साथ इंडिया का करार है तो अपना एक्सपोर्ट इज $776 बिलियन। जब 35 कंट्री के साथ और एफटीए करेंगे जहां पे एसेंशियली 0 ड्यूटीज हो जाएगी, $1 ट्रिलियन है, ये सर ना, तो सरकार आज के। सो इट इज ऑल साइंस, इट इज ऑल डेटा, इट इज ऑल स्टैटिस्टिक्स, कोई हवा में बात नहीं होती, जहां तक मेरा मानना है, राइट। अब नीचे देखें, इंडिया यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें से 95% प्रोडक्ट्स इंडिया से जो यूएई में जाते हैं वो 0% ड्यूटीज पे जाते हैं। पहले 5% था, सो आपका 5% सीधा प्राइस कम हो गया। योर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज विजा विद चाइना, क्योंकि चाइना से तो पहले से करार है ही उन कंट्री के साथ, हम अभी कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, ऑब्वियसली। हाँ, यस, जीसीसी में है ना, 6 कंट्री में, जैसे यूएई, आपका सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, 6 कंट्रीज में से 100 प्रोडक्ट अगर किसी भी मुल्क में जाते हैं 0%। यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री, जर्मनी से इटली से नेदरलैंड से बेल्जियम, कुछ जाएगा 0% ड्यूटीज। वहां पे तो लोग भी फ्रीली घूम सकते हैं, यू डोंट नीड वीजा, यू नो दैट, राइट। करेंगे, यही करें। हाँ, कम हो नहीं, आपका लोकल सोर्सिंग भी प्लस हाँ तो मिलेगा जैसे, लेकिन इंडिया का यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब 97% यूएई ने परमिट किया है, इंडिया हैज ओनली परमिटेड 85% प्रोडक्ट, क्योंकि हमको भी करना पड़ेगा ना, हमको तो इट इज विन-विन सिचुएशन, वो तो ट्रेड છે એટલે એ 97 કરશે तो હું 85 કરીશ। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में 96 किया है, ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा, सो इंडिया ने 82% ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहे हैं या आएंगे उस पर से 0% लगा दिया है। लेकिन फिर भी इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि हम लोग, उन लोगों ने हमको ज्यादा परसेंटेज दी है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये गुजरा हुआ छोटा सा कंट्री, छोटा सा इंडिया वे इकोनॉमिकली वाइज, प्लस अगर इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी, दे नो कि लेबर सबसे कम है, कंज्यूमर इंडिया के सबसे 150 करोड़ सबसे ज्यादा है, मेन मार्केट ही इंडिया है, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि यस दैट्स द रीजन। वैसे ही इफ्ता में देखो कितना अच्छा है, 92% ऑफ द प्रोडक्ट में इन लोगों ने अपने को दे दिया है। ये अभी इसका जन्म ही इस साल हुआ है, 10 मार्च 2024। ये 4 कंट्रीज मैंने बताई वो, और उसमें अगर आप आज एक्सपोर्ट करते हो इन 4 कंट्रीज में, ये स्विट्जरलैंड वगैरह, नॉर्वे, आइसलैंड, उसमें करते हो, तो अगर वो 92% में आपका प्रोडक्ट फॉल करता है, सो इट विल हैव ए 0 ड्यूटीज। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि फिलहाल 96 किया है, लेकिन 2026 तक तो हम 100% प्रोडक्ट इंडिया से आएगा। मतलब इंडिया से तुम पेन से लेके, पिन से लेके, प्लेन से कुछ भी एक्सपोर्ट करो ऑस्ट्रेलिया में, इट विल हैव 0% ड्यूटीज। सो नाउ एट एंड ऑफ सो मेनी ईयर्स समहाउ वी आर एट पार विद चाइना,
क्योंकि चाइना तो ये बहुत साल पहले करा करके बैठा है भाई, हम लोग देर जागे ના એટલે જ્યારે એગ્રીમેન્ટ થાય ને તો એની અંદર એ લોકોનો એક ફેઝ હોય કે સનસેટ ફેઝ, એ ફેઝ ધીરે ધીરે તમારો થાય એટલે 100 પ્રોડક્ટ્સ એક શોટ પર ના થાય, એટલે સ્લેબ સ્લોટ્સમાં થાય છે ને. મેં કીધું તમને EU નેશન 27 કન્ટ્રી જોડે આપણું FTA થશે, ઓમન જોડે, UK જોડે અને બીજા 4 કન્ટ્રી ગલ્ફના, એટલે 6 અને 27 કે 33 કન્ટ્રીઝમાં બિફોર 2025 ડિસેમ્બર. ધીસ ઇઝ અ ટાર્ગેટ. They are doing wonderful. एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स अत्तर इंडिया में सबसे बढ़िया बंदा मिला है जयशंकर. तो टेरिफिक बंदा है. सो ये इफेक्ट हो रही है, नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट फ्रॉम शेयर बिजनेस सेंस. नाउ ये सब तो हुआ यार, मैक्रो लेवल पे स्टैटिस्टिक्स की बात की, ये सब तो बात हुई. अब मेरे को ये बताओ मैं अपने प्रोडक्ट्स का चेक कैसे करूं कि मैंने कोई कंट्री सिलेक्ट किया है. फॉर एग्जांपल यूएस, मुझे अंकित तुम इतना बता दो कि इंडिया से मुझे यूएस करना है, यूएस में मेरे कजिन्स है, मेरा नेटवर्क है, मेरा कोई रेफरेंस है, चाचे मामे मौसे का कोई लड़का है, कोई भी है, तो मेरे पास कंट्री है, मेरे पास मार्केट है, मेरे पास लोकल रिसोर्सेज भी है. तो मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ नहीं आती कि इंडिया से कौन सी प्रोडक्ट वहां पर चलेगी या नहीं चलेगी. सो दैट वेबसाइट ओवर हियर, आई विल जस्ट शो यू सो दैट यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक यार ये कैसे चीजें चलती है. It's a free website. You need not even log in की कोई ज़रूरत नहीं है. So it is known as export potential map. Again, and WTO routed कुछ इनका कुछ वेबसाइट है करके. So यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ये क्लिक किया, एक्सपोर्टर कौन है तो इंडिया है, मुझे तो इंडिया से करना है. सो आई विल पुट इंडिया. ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया किया. ओके, और वर्ल्ड है. अब मुझे पूरे वर्ल्ड में नहीं देखना है यार, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया बताओ ना, ऑस्ट्रेलिया में मुझे अगर करना है, आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में अभी इंडिया से जाता है 100% ड्यूटीज, 100% प्रोडक्ट है वहाँ पे, उसमें 96 प्रोडक्ट्स पे तो ड्यूटी है ही नहीं. तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, दिस प्रोडक्ट्स. अभी ये क्या है, ये तो 50 प्रोडक्ट्स है, अब मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 5 या 10 मेरे काम के बताओ ना. तो यहाँ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो 200 प्रोडक्ट तक मिलेगा. यहाँ पे बैकवर्ड स्क्रॉल करोगे 18 प्रोडक्ट्स, और मिनिमाइज करता हूँ 14 प्रोडक्ट्स, और मिनिमाइज 5 प्रोडक्ट, ये लो 12. सो ये 12 प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट सेगमेंट्स या सेक्टर्स एज सच. अब मोटर व्हीकल्स इट कैन बी यूज सेक्टर, इट कैन हैव इस कंपोनेंट, इट कैन हैव पार्ट्स, इट कैन हैव एंजिन केजिंग, कશું भी હોઈ શકે, राइट. सो ये બધા પ્રોડક્ટ્સ અહીંયાથી જાય. બટ નાउ इफ यू वांट टू सी यार ये तो डेटा हुआ, मुझे अभी यहाँ पे ये भी सिखाओ कि हाउ शुड आई इंटरप्रेट. ये जो कलर बॉक्सेस तो बढ़िया दिख रहे हैं, येलो ब्लू, मेरा इंटरप्रिटेशन एज ए लेमेंस कैसे रहेगा इफ आई एम स्टार्टिंग समथिंग. सो यहाँ पे आओगे, यू क्लिक हियर. सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक्सपोर्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स फ्रॉम इंडिया अगर है, सो एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना दिखा रहा है, $466 मिलियन का दिखा रहा है. ये इतना पोटेंशियल है. और इंडिया से एक्चुअल एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, महज $67 मिलियन. तो जो गैप है वो कितनी है, करीबन $400 मिलियन. $400 मिलियन में फॉरगेट अबाउट 44 मिलियन, 1 मिलियन भी भूल जाओ यार, 10 लाख का कुछ बेच सकते हो. डोंट ऑलवेज सी मैक्रो लेवल एंड देन सी व्हाट आई कैन डू एट और व्हाट आई कैन एग्जीक्यूट एट माइक्रो लेवल. हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो लेवल देख के बड़ा चीज देख के घबरा जाते हैं, ये मैं कैसे करूंगा. बट थिंक एट योर लेवल कि मारू प्रोडक्शन 100 टनનું છે, 80-90 ટન તો હું ડોમેસ્ટિકમાં આપું છું, રહ્યું 10 ટન, એ 10 ટન હું ઓસ્ટ્રેલિયા નાખું કે યુએસ નાખું. That should be your immediate next year project. उसके हिसाब से फिर बजट बनेगा, ये डिफरेंट स्टोरी. बजट की बात जब करेंगे तब करेंगे. दिस इज हाउ यू प्लान अराउंड. कि ये दिखाया भाई इसमें आगे क्या. जब फॉर एग्जांपल कि दूसरा सेगमेंट लेते हैं कि ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स हो गया, ये तो ठीक है, मैं नहीं कर सकता कि मेरे काम मेरे में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. मैं कुछ कॉटन में कर सकता हूँ, बेड लाइनन ऑफ कॉटन, बेडशीट ने कॉटन ने બધા પ્રોડક્ટ્સ છે. હવે એના માટે યુ ડોન્ટ નીડ એન હાઈફાઈ એન્જિનિયરિંગ, यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट ऑफ crores रुपीज. ये कितना है, 71 मिलियन का प्रॉस्पेक्ट पोटेंशियल दिखा रहा है. और ये WTO का है, मेरा कोई डेटा नहीं है, RBI या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा नहीं है. एक्चुअल कितना कर रहा है इंडिया, 21. स्टिल द पोटेंशियल रिमेन्स ऑफ $50 मिलियन. कैन आई डू समथिंग, डू आई नो समवन इन दिस कॉटन लाइनन वाला सेगमेंट में. अहमदाबाद में 5 लोगों को जानता हूँ, मैं सूरत में 5 लोगों को जानता हूँ जो ये बेडशीट, गद्दे, ये मैट्रेसेस कुछ बना सकते हैं कॉटन रिलेटेड. तो करो, उनको कॉन्टेक्ट करो, सर आई डू हैव मार्केट, गिव मी एक्सक्लूसिविटी फॉर 1 कंट्री,
तुम तो वैसे भी नहीं कर रहे हो, हाँ अपना तो डोमेस्टिक में चल रहा है तो मुझे दे दो। दिस हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिकली इनटू द बिजनेस। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स जैसे मैंने सर को भी बताया था, पारेख सर ने हमने मेरा बात करी हमारे नीचे कि अमेजोन पे 1.5 करोड़ प्रोडक्ट लिस्टेड है। हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज विथ HSN कोड ईच एंड एवरी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो ऑलवेज सिलेक्ट द नेटवर्क यू आर अवेयर, और आपको जिस पे ट्रस्ट है कि ये अब मोटा मोटा पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ करना है, लाइनर में मैं स्पाइसेस में 4 लोगों को जानते हूँ, डायमंड्स में मैं 5 लोगों को जानता हूँ, नहीं जानता तो छोड़ दो। डायमंड्स बहुत बड़ा पोटेंशियल है, डायमंड में बहुत बड़ा मार्जिन है, ओके सा है, बट डू यू नो समवन इन इंडिया एटलीस्ट 5 पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट कि आधी रात को भी मेरे को प्राइस देगा? नहीं तो भूल जाओ, क्यों कर रहेगा? या motor vehicle transport less than 10%, that is the vehicle assembly or component? ના આખું વ્હીકલ હશે, વ્હીકલ એટલે પેલું ફોર્સનું છે ને 10નું એના નીચે ને એટલે કાર બધી આવી જાય તમારે, એટલે પ્રોપર વ્હીકલ્સ નોટ અ કમ્पोनेंट्स, राइट। अभी ये भी जैसे यहाँ पे मुझे यूएई देखना है, सो मैं यूएई करूँगा, दिस इज यूएई, आई विल गेट अनदर 200 प्रोडक्ट्स कैटेगरी, 50 प्रोडक्ट्स। मुझे 50 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बारीकी से 8 या 10 पे ही काम करना है। ये लो अगेन ज्वेलरी एंड स्पेशल, ये कुछ प्रोडक्ट्स तो कॉमन ही रहेंगे जो मैंने बताया। इंडिया से एक्सपोर्ट में कुछ कंट्री टॉप में कॉमन रहेंगी, इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में कुछ प्रोडक्ट्स कॉमन रहेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सब ज्वेलरी में मुझे जाना नहीं है, डायमंड्स में मुझे जाना नहीं है, मोबाइल फोन्स मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मेटल मेडिकेमेंट्स रिटेल सेल में कर सकता हूँ, मोटर व्हीकल में कर सकता हूँ, सेमी मिल राइस में कुछ तक कर सकता हूँ। राइस में यू कैन डू, पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है फिलहाल, तो डोंट गेट इनटू दोस बिजनेस। गवर्नमेंट बोलता ही है कि राइस पे 20% इज देयर एक्सपोर्ट ड्यूटी, डोंट गेट इनटू दैट बिजनेस, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इज वेरी हाई व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। राइस हो गया, वीट पे भी बैंड लगा हुआ है, गेहूं के आटे पे रेस्ट्रिक्शन है, मैदा पर रेस्ट्रिक्शन है, तो नहीं करवाना पड़ा। ओनियंस चाला है 40% 20% ड्यूटीज कल ही आया है, तो क्यों करना है ऐसे प्रोडक्ट्स? इसके अलावा क्या हो गया, डायमंड्स अनुभव, श्रिम्प्स प्रॉन्स फ्रोजन कर सकता हूँ, यस, क्योंकि $300 मिलियन का पोटेंशियल है, 137 जा रहा है, फिलहाल 180 का तो गैप है, $1 मिलियन तुम करूँ, फॉरगेट अबाउट 1 मिलियन, $1 लाख, फॉरगेट अबाउट 1 लाख, $10,000 है, फिश श्रिम्प्स कुछ कर सकता हूँ। So when you divide this at a micro level, then you understand the possibilities. हाँ यार ये कुछ जुगाड़ हो सकता है। I know someone in भावनगर कोस्टल एरिया के आपका फिश ने स्ट्रीम्स में कसू सरस काम करा है। Get into those kind of product. This how you clear, easy, a free website है, no login required. Anytime you can view on your mobile वगैरह। And coming to the last slide, let's see what it has. So ये एक वेबसाइट हो गया, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग योर सक्सेस इन द एक्सपोजर, वेरी सिंपल, काफ़ी सेशंस में मैं रिपीट करता हूँ। सो राइट प्रोडक्ट परहैप्स दैट इज द की, कि एक राइट प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया। कई लोग ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं होता है। तो मुझे अभी मैंने हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एएमए में मुझे मिले थे, उनको डिहाइड्रेटेड गार्लिक और ओनियन एक्सपोर्ट करना था, और एक बंदे को एक्सपोर्ट करना था फ्रेश गार्लिक। अब फ्रेश गार्लिक का इंडिया से एक्सपोर्ट पूरे साल में इज ओनली 35 करोड़। मैंने बोला यू वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस, पूरे साल में हर एक पॉट से इंडिया में ओनली 35 CR फ्रेश गार्लिक। तो बोले कि ट्राई करता हूँ, ठहरो, चाइना का डेटा देखा, तब पता चला कि चाइना पूरे मुल्क में 85% ऑफ दी फ्रेश गार्लिक प्रोवाइड करता है। 100 किलो गार्लिक दुनिया में कसे खवाय छे तो एमांथी 85 किलो इज गिवन बाय चाइना। यू स्टिल वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस, दैट गाय ड्रॉप द आइडिया, नहीं करना। दिस इज हाउ इट इज। तुमको स्टैटिस्टिक्स साइंस समझना है, इंटरप्रिटेशन करना है कि मैक्रो लेवल पे हो रहा है, माइक्रो लेवल पे मैं कुछ कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, नहीं तो छोड़ दो उसको। यू चेंज दी प्रोडक्ट्स और यू चेंज दी मार्केट्स। वन इज दिस, अनदर इज ऑफ कोर्स राइट मार्केट, जो हम लोग अपने सेशन में बताते हैं। 220 कंट्रीज, तुम्हारे प्रोडक्ट का महज 10 या 12 कंट्री काम के होंगे ऑन बेसिस ऑफ डिमांड, कि इंडिया से बड़ी तादाद में वो चीजें जाती हैं। तो हम लोग वहाँ पे मार्केट सिलेक्शन सिखाते हैं कि 220 में से 20 कंट्री तुम्हारे काम के, और उसमें से एलिमिनेशन सिखाते हैं। एलिमिनेशन किस हिसाब से, अगर उस मुल्क में इंडिया से प्रोडक्ट अगर जा रहा है, कोई FTA नहीं है, हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी इज वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल जैगरी इंडिया से अगर केनिया तांजानिया जाता है, सो उस मुल्क में इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन जैगरी गुड इज 100%। मैं कहाँ से करोगे बिजनेस यार? 75 रुपीज गॉड किलो नो, 150 થઈ ગયા, 50 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन, 200 किलो का जैगरी खाएगा कौन केनिया में? हम नहीं समझते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज 70% साइंस में, हमेशा ही कहता हूं, इट इज ओनली 30% आर्ट्स। साइंस समझ गया ना 70%, बाकी तो काम हो गया, राइट?
अनदर इज क्वालिटी, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। हमको ये नहीं करना है कि मैं क्या बना रहा हूँ, हमको ये समझना है मैं जो बना रहा हूँ उस मुल्क में वो चलेगा या उसमें मुझे कोई चेंजेस करना है। मैं ये पीपी बैग नॉन वोवन बैग में चल रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे मार्केट वैक्यूम पाउच का है, जिप लॉक पैक का है, मॉइस्चर फ्री पैकिंग है, हम वो नहीं समझते। हम लोग कार्टून बॉक्स में पैक करते हैं, वहाँ पे बबल रैप हो रहा है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड पैकेजिंग एज वेल, दैट मेक्स योर ब्रांड and that will put you in a elite kind of suppliers. Another is reliability, proactive responsiveness. हम लोग ईमेल आते हैं, नहीं पढ़ते, गौर नहीं करते, वो 100 मैसेज पढ़ते रहते हैं, यू आर आउट ऑफ मार्केट, यू आर, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग योर बायस ईमेल इन 48 आवर्स। ये एक आज से एक आदत डाल दो, जिसका भी ईमेल आता है, प्राइस मांगा है, उनको लिखो वन लाइनर, सर आई एक्नॉलेज योर वैल्यूएबल इंक्वायरी, वी आर वर्किंग ऑन इट, सर वी शैल कम बैक टू यू नेक्स्ट 4 to 5 days और बाय दिस वीकेंड। खत्म। उतनी तो जहमत उठानी पड़ेगी, अदरवाइज इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन, ये भाई का कोई ट्रस्ट वैल्यू कोई है नहीं, कोई रिलायबिलिटी नहीं है बंदे का। जो बंदा मेल का जवाब नहीं था, बंदा प्रोडक्ट क्या देगा? एज सिंपल एज इट इज। ओके, एंड लास्ट इज योर कॉम्पिटिटिवनेस। सो राइट प्राइजेस इन ई बायस कंट्रीज। मैं अभी पारेख साहब से और परेश सर से भी बात कर रहा था, हम लोग वही बात कर रहे थे कि हाउ टू नो प्राइजेस। हमने मोटा मोटा इनको हम लोग जस्ट शेयर कर रहे थे आपस में, दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि भाई यूएस में अगर प्राइस चेक करनी है तो अमेजोन पे डाल दो, 3 करोड़ प्रोडक्ट्स तो यूएस अमेजोन पे लिस्टेड है। अच्छा, उससे कम प्राइस तुमको यूएस में मिलेगा नहीं। तुमको यूएस में दूसरी बार प्राइस चेक करना है, चेक ऑन देयर वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से सस्ता कहीं पे है नहीं, खत्म। वो 2 प्राइस तुम्हारा बना लिया। फॉर एग्जांपल, इफ द कॉस्ट इज $10 में तुमको पता है कि ये रिटेल जायंट्स, इनका प्रॉफिट मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन एंड बैकवर्ड मार्जिन, दिस इज व्हाट दे कॉल लिस्टिंग कॉस्ट, प्रमोशनल मार्जिन्स, पुट टुगेदर 40%। खत्म करो, 40% हो गया, प्लस 10% मेरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट गिन लो, 50%। सो $10 में से $5 गए, $5 मेरे को यहाँ पे एफओबी चाहिए, $5 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज, 8 5 400, 400 रुपये में मैं और 50 रुपये डिडक्ट करूंगा लोकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। 350 रुपये पर किलो में अगर मैं बेचता हूँ, वेदर इट मेक्स अ बिजनेस सेंस और नॉट, एज सिंपल एज इट्स। अगर नहीं करता तो छोड़ दो, वेरी ऑनेस्ट। प्रॉफिट एंड रिजर्व काई को करने का इतना सब झमेला, 17-18 डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स और प्रॉफिट मार्जिन मियर 5%, क्यों करने का? हाँ, बट इफ इट इज बैक्ड बाय वॉल्यूम, दैट मेक्स सेंस। सो वॉल्यूम मार्जिन, अगर आप उसको ट्रेड ऑफ कर सकते हो, डिफरेंट स्टोरी। बट दिस इज हाउ यू चेक दी प्राइसेस, दिस इज हाउ यू चेक योर कॉम्पिटिटर्स, वेदर कि मैंने कौन सा भी $10 दे दिया, $10 में तो वहाँ पे अमेजोन पे रिटेल में मिलता है सब, तुम 10 में दोगे, वहाँ पे पहुँचते पहुँचे 15 हो जाएगा। हु इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट? हम लोग क्या करते हैं, ये मेरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट पे मैं $2, $3, 10%, 15%, 10% मेरे को डोमेस्टिक में मिलते हैं, मैं इसमें 20% लगा के एक्सपोर्ट बेचूंगा। तो दिस इज नॉट डन। एक्सपोर्ट्स नहीं होगा इस हिसाब से, या तो उसको प्राइस परवड़ेगा नहीं, या फिर उसको जो प्राइस में परवड़ेगा उसमें तुम कमाओगे नहीं कुछ। इसलिए साइंस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज हैपनिंग इन दोस कंट्री। यूएई में प्राइस चेक करना है, आंखें बंद करके लुलू की वेबसाइट जाओ यार, लुलूस इज दी सबसे सस्ता इन यूएई पूरे मिडल ईस्ट में। वेबसाइट चेक कर लो क्या प्राइस है। हमने जैगरी का प्राइस किया था 6 AED या दिरहम्स, दिनार्स, 6 अपना 1 किलो का 2 दिरहम्स उसका प्रॉफिट जो रिटेलर है या फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर है। 1.5 दिरहम तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर का, 3.5 चले गए, आधा मेरा ये गया, 4 दिरहम गया, 2 दिरहम से गए, 2 दिनार्स या दिरहम्स मल्टीप्लाई बाय 22 रुपीज, 45 रुपीज। 45 रुपीज में वेदर इट मेक्स सेंस टू सेल माई जैगरी, माई पर्सन सेड नो, मुझे तो यहाँ पे 50 में पड़ता है, तो मत करो, यूएई इज नॉट योर मार्केट। ये 2 and 4 करना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल बिजनेस मैथमेटिक्स, ज़्यादा कुछ वो रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। थोड़ा बहुत इधर उधर वेबसाइट देखोगे वो तुम्हारा ग्रिप अपने आप आ जाएगा। करेक्ट। सो वी एंड अप दिस सेशन over here, right? And then yes. So you need to buy a data from import-export agencies. Exim Guru है, Exportgenius है, Zoba है, Volza है, Dollar Business है. A lot of agencies are in Bangalore, Hyderabad, Delhi, Bombay में, Pune, Noida में base है. You need to buy data, but that data can be very costly. It ranges from 1 lakh rupees to 2.5 lakh rupees. So Volza का data starts from $500. Multiply by 8, 50,000 से शुरू होता है. उसमें you will get a name of importers, name of exporter. ले name of importer मिल भी गया, उसके कॉन्टैक्ट तो फिर बनाने ही पड़ेंगे। मिस्टर पीटर है, अब मिस्टर पीटर को गूगल में ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ पे ये, अब लिंक्डइन में उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ही मे एक्सेप्ट, ही मे नॉट एक्सेप्ट। तो दिस इज, इसलिए एक्सपोर्ट्स इज बिहेव्स इन हिज ओन ऑर्गेनिक वे, स्लोली ग्रेजुअली, बहुत पेशेंस से चलेगा। हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, बट योर टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। अगर पेशेंस है
तुम कभी ना कभी हम में से सब लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 8 महीने लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, एक्सपोर्ट होगा सही, फॉर श्योर। जी करेक्ट करेक्ट हाँ ऑब्वियसली नहीं चलेगी, या तो वो प्रोडक्ट में पढ़ो नहीं, या देयर इज ओनली वन की एंड द की इज ब्रांड। तुमने जिस चीज का ब्रांड बना दिया ना, फिर दुनिया देखती नहीं है चाइना इंडिया क्या है, ब्रांड है तो इट वर्क्स, बट यू नीड टू इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली इन क्रिएटिंग ए ब्रांड। जैसे अमूल है, वो ब्रांड बना दी है, तो वो चाइना को फेस करने के लिए कोई एक चीज समझ जाओ, चाइना को तुम प्राइस में फेस नहीं कर सकोगे। द रीजन द इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन द मास प्रोडक्शन, रीजन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द एवरेज कॉस्ट इज वेरी मच लो, रीजन गवर्नमेंट सपोर्ट, जहां हमको गवर्नमेंट सपोर्ट 1, 2, 3% 4% मिलता है, द गवर्नमेंट स्टिल गिव्स देम 13 to 14% रिबेट। सो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम $100 में से वो लोग $14 कम कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। वो इकोनॉमिक समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट फेस देम एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न्ड। तो ओनली वे टू गेम और टू प्ले गेम और विन ए गेम इज ब्रांडिंग। तुमको कबड्डी आता है ना, सब हम तो खो खो ही खेलेंगे, यू कैन डू दैट। अगर ब्रांड बना लिया, अब ब्रांड कैसे बनाओगे? 3-4 वेज। वन इज योर ट्रेड फेयर एग्जीबिशन, नंबर 1। नंबर 2, उस कंट्री में तुमको डिजिटल मार्केटिंग से कुछ कर रहे हो, लिंक्डइन पोस्ट वगैरह कुछ, SEOs वगैरह, गूगल एडवर्ड, ये सब कर रहे हो। थर्ड इफेक्टिव मुझे जो आज की तारीख में लगता है, अभी सब डिजिटलाइजेशन बहुत है, हम लोग ऑनलाइन जूम ये सब चल रहा है, वहां पे योर पर्सनल रेपो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैं मेरे हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ, यार ये सब छोड़ो, ये गूगल बंद कर दो यार, तुम मिलना शुरू करो, ओमान में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, लोगों से मिलो, जुड़ो, सैंपल दो, सर्टिफिकेशन की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, ये सब बात करो। वहां पे जाके 1-2 घंटा जाके सैंपल्स दोगे, सर्टिफिकेशन देगे, आज नहीं 6 महीने के बाद तुमको ऑर्डर देगा वो। जब आई डोंट से ऑर्डर मिलेगा, आई डोंट से बिजनेस मिलेगा, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई इन दैट, सो दैट कैन बी ए गेम चेंजिंग। सो ये 3-4 तरीके हैं जहां पे तुम अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हो। जी सर। फिलहाल टाइम वक्त का ये है, पाबंदी है, तो नहीं दिखा सकता, बट सेशंस में दिखा सकता हूँ। 3 आवर्स या 6 आवर्स के सेशन में दिखा सकता हूँ। वहाँ पे आपको, आपका अगर HSN कोड है तो उस HSN के कोड के जरिए इंडिया से कितना गया, 100 कंट्री में गया है तो 100 का 100 वैल्यू मिलेगा, पूरा डेटा दिखाऊंगा। वहां से 100 कंट्री में गया है तो 100 कंट्री में इंडिया से इंपोर्ट ड्यूटीज कितना है वो दिखा दूंगा। इंडिया के अलावा और कितने मुल्क में ने वहां पे एक्सपोर्ट किया है वो दिखा दूंगा। अगर आप प्रोडक्ट उस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट आपको आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना इंसेंटिव देती है वो दिखा दूंगा। अगेन 3-6 आवर सेशन विच एक घंटे में थोड़ा मुश्किल है। हाँ तो कौन, मेरे को कॉल करो, मेरे नंबर पे, ये रहा मेरा नंबर है ना, हाँ तो कॉल करो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे दूंगा। अगर कंसल्टिंग के स्कोप में आता है तो फीस लूंगा, अगर फोन पे बात हो जाएगी आई वोंट बी चार्जिंग एनी फीस, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, क्लियर? होप इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग इजी इन ए वे, राइट? तो थैंक्स अ लॉट। Thank you, Ankit bhai. थैंक यू सर। See, there was a formal question answer session, but most of the questions have already come and Ankit bhai has nicely explained or answered them also. Still, if anybody has any question, one question we can take, then we can close it. Okay, no questions. Thank you very much, Ankit bhai, for such an enlightening deliberations and lecture. I would like to thank all of you, and I am really happy to see that in the entire room, the population, if you see, the youngsters are more. So that means, Ankit bhai, you are going to get a lot of customers in future. Because these are all aspiring people. Hardly senior citizen like me, I am not able to find out. But most of you are somewhere between 25 to 40. So it's really good, very good sign. And I am very much thankful to all your audience for attending such a nice gathering in good evening. I am really thankful to Ankit bhai Majmudar for delivering such a nice enlightening deliberations on the export-import and giving us very in-depth knowledge about the same or in-depth information about the same. And I am also thankful to all the staff of the AMA, Ahmedabad Management Association, for organizing this as well as helping us to conduct it very nicely. Thank you. Thank you, everybody.